Dear students, how are you? I hope you are good. Dear students, in previous videos we discuss importance of memos and now today's topic is circulars. Dear students, before starting circulars, I want to repeat yesterday topic that is memos. No, students, I discussed what is memos and why we use memos and what is the importance of memos means memorandum. So dear students, I want to repeat this is it is also called memo and is used for inter office correspondence in offices. These letters are written in memo simplified style and it abstains from salutation as well as complimentary clause. The memo is usually used in office for routine matters like granting of annual increments, sentimation in services, salary and leave adjustment etc. It is usually written by higher authorities for the purpose of sharing information. The students, in detail आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस वंस अगेन मीन्स स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था कि मेमोज क्या होता है. मेमोज दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिकेशन. इन दिस वे वी कैन से एनी इंफॉर्मेशन टू आवर ऑफिसेस. सो ये एक ऐसा मेमोज एक ऐसा मेमोज एक ऐसा एक लेटर बिजनेस लेटर होता है जो अपने ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यूज किया जाता है. और इस तरह के जो लेटर होते हैं वो मेमो सिंप्लीफाइड स्टाइल में लिखे जाते हैं और इनका एक सैल्यूटेशन में लिखा जाता है और एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए लिखा जाता है. और मेमोज का जो यूज होता है प्राय ऑफिसेज में रूटीन मैटर्स को लेकर, ग्रांटिंग को लेकर, एनुअल इंक्रीमेंट्स को लेकर, कंफर्मेशन को लेकर, सर्विसेज को लेकर, सैलरी को लेकर, लीव एडजस्टमेंट को लेकर बनाया जाता है या इसको सर्कुलेट किया जाता है. So dear students, it is usually written higher authorities for the purpose of sharing information. So dear students, I discussed in starting these topics that this is the conveying mode of higher level to lower level authorities. So dear students, and also I discuss purpose of writing memorandum. So dear students, I want to repeat once again to remind something important, to highlight an event or circumstances, to recount an event, to keep an official record, to pass an information. That is, so dear students, I also told you that if you want to detail, so you can see your page number 138, the example of memos. So dear students, now next point is types of business memos. That is, this is first is operational memos, financial memos, environmental memos, announcements means policy change, meeting etc. And fifth is request of action from memos, cover memos, directives, response to an inquiry, trip report, dress code memos. So students, मेमोज के बारे में हमने पढ़ा और मेमोज के टाइप्स ऑफ बिजनेस मेमोज के बारे में पता. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ बिजनेस मेमोज शो बी यूज इन आवर ऑफिसेज और our correspondence. So the students, first is operational memos, second is financial memos, third is environmental memos, fourth is announcement. Just operational memos, dear students, that is financial memos means operational memos का मतलब dear students होता है कि जब कोई भी हम ऑपरेशनली चीज़ यूज करते हैं या कोई भी ऐसे ऑपरेशन के थ्रू हमको काम करना है, कोई टारगेट का काम करना है, तो वहाँ पर हम ऑपरेशनल मेमोज बनाते हैं. सेकंड इज फाइनेंशियल मेमोज. डे स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मेमोज हम अपने इकोनॉमिक कंडीशन को लेके बनाते हैं या अपनी फाइनेंशियल स्थिति को दिखा के बनाते हैं. एक तरह का ये भी एक मेमोज होता है. इन्वायरमेंटल मेमोज, डे स्टूडेंट्स, अपने प्रकृति के, अपने वातावरण से जुड़े चीज़ों को जुड़े हुए, अपने इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव करते हैं उस तरह के चीज़ों को लेकर अगर कोई मैटर को लेकर हम अगर कोई मेमोज बनाते हैं तो उस मेमोज को हम इन्वायरमेंटल मेमोज कहते हैं.
स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट इज अनाउंसमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, अनाउंसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पॉलिसी आता है, जो चेंजिंग होते हैं, जो मीटिंग होते हैं, जो शेयर इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो इसमें अनाउंसमेंट में हो जाता है कौन सी पॉलिसी कैसी है, किसका किससे इंटरेस्ट है, कितना मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट्स में यूज़ करते हैं। सो 5 इज रिक्वेस्ट ऑफ एक्शन। डी स्टूडेंट्स, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो रिक्वेस्ट किया जाता है उस मेमोज को हम रिक्वेस्ट ऑफ एक्शन में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट इज फॉर्म मेमोज। सेकेंड इज कवर मेमोज। कवर मतलब किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए जो मेमोज बनाए जाते हैं, डेट इज डायरेक्टिव्स हो गए। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। किसी इंक्वायरी को लेकर जो रिस्पॉन्स किया मिला है उसके लिए हम मेमोज बनाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिप रिपोर्ट। ट्रिप रिपोर्ट का मतलब कोई भी ट्रिप किए हैं उसका रिपोर्ट क्या है, गो सेंड मी थ्रू बाई मेमोज, डेट इज द ट्रिप रिपोर्ट। 11 ड्रेस कोड मेमोज। दिस इज आल्सो you know that. So the students, and now today's topic is circulars. The students, you know that circulars is also a types of business letters. Means सर्कुलर्स क्या होते हैं, पहले आप स्टूडेंट्स ये समझ लें, और सर्कुलर को यूज क्या होता है ये समझे, क्यों यूज किया जाता है सर्कुलर। क्योंकि सर्कुलर का ही मतलब होता है डियर स्टूडेंट घूमना। घूमना का मतलब सर्कुलेट होना। सर्कुलेट का मतलब कोई चीज़ें कहीं अपर अथॉरिटी से लेकर लोअर अथॉरिटी तक कोई चीज़ सर्कुलेट होता है, या जैसे कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है अपर से लेकर लोअर तक, दैट इज़ द मीन्स ऑफ सर्कुलर। मीन्स सर्कुलर एक ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन एक ऑफिस में यूज किया जाता है, उसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैटर को हम कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर को लेकर। लार्ज नंबर किसी ऑफिस में लेकर, किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज में लेकर, यहाँ पर हम सर्कुलर्स को यूज करते हैं। सो डी स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस दिस। इन एन ऑफिस, किसी भी ऑफिस में, व्हेन एवर एनी इंफॉर्मेशन और मैटर इज टू बी कम्युनिकेट, किसी भी ऑफिस में जब किसी भी मैसेज, किसी भी मैटर को या किसी भी सूचना को जब कम्युनिकेट के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए, टू लार्ज नंबर ऑफ पर्सन ऑफिस, टू लार्ज बहुत सारे लोगों के लिए लिया जाता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हम पर्सनली किसी एक आदमी को तो भेज नहीं सकते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं, सर्कुलर जारी करते हैं। ठीक है, तो ऑफिसेज मेंबर्स और ब्रांचेज ऑफ द सम, मतलब मीन्स क्या, जैसे लोग जो होते हैं उसमें ऑफिस के जो मेंबर्स होते हैं, उस ऑफिस के जितने ब्रांचेज होते हैं सब के लिए, ठीक है, तो उसके लिए सर्कुलर्स किया जाता है। सम ऑर्गेनाइजेशन देन दे आर डन थ्रू सर्कुलर्स, दे आर इन अ फॉर्म ऑफ लेटर एड released to all offices, to all branches, to all departments. स्टूडेंट्स, जब कोई भी अपर अथॉरिटी करती है, कोई भी सर्कुलर जारी करती है, तो वो सर्कुलर क्या करती है, उससे रिलेटेड सभी ब्रांच के सभी ऑफिसेज से और उसके सभी डिपार्टमेंट को क्या करती है, सेंड कर देती है। मीन्स कोई भी सर्कुलर जारी करने का मतलब मेन मोटिव यही होता है, हाउ टू कन्वे और इन्फॉर्मेशन टू ऑल ब्रांचेस related that departments, to all person related that departments, to all authorities, that is means. So dear students, सर्कुलर का मतलब यही होता है कि सूचना को पहुंचाना, और सूचना को पहुंचाने का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम सूचना कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम सर्कुलर्स का यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, सर्कुलर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, Now I want to repeat once again, that is, in an office, whenever information or matter is to be communicated to a large number of person or offices, members or branches of the some organization, then they are done through circulars. They are in the form of letters and release and raised to all offices, to all branches, to all departments. So the students, if you want to see these types of circulars in examples, so you can see your book page number 144, that is very sufficient for you. So dear students, I hope you can understand. So I want to show this. So dear students, now in next video I will meet in new topic, that is office orders. So office orders
में हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑफिस जो दो ऑर्डर पास करती है कैसे पास करती है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।